अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Inshallah, today we will start the 51st session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द लेटर्स, जो लेटर्स जा रहे थे दूर दराज के एम्परर्स और किंग्स के पास. तो वी एंडेड जो लेटर टू कोसरोस एम्परर ऑफ पर्शिया को जो लेटर गया था उसमें हम लोगों ने एंड की थी अपनी क्लास. अब आगे बढ़ते हैं. एम आई क्लियर? वन ऑफ यू प्लीज कंफर्म. वन ऑफ यू प्लीज कंफर्म. Yeah, Nasreen. All right. अभी द इनवॉय टू द किंग ऑफ रोम, द सीजर्स, उसके पास कौन सा लेटर जाता है और कौन से सहाबी एज एन इनवॉय जाते हैं. Al-Bukhari records along, by the way, this is page number 474 that I'm beginning. Some of you who are following the hard book, page number 474. Al-Bukhari records a long narration of the contents of the letter sent by the Prophet to Heraclius, emperor of the Byzantines. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, from Muhammad, the servant of Allah, and his messenger to Heraclius, the king of the Byzantines. Blessed are those who follow true guidance. I invite you to embrace Islam so that you may live in security. If you come within the fold of Islam, Allah will give you a double reward. But if you turn your back upon it, then the burden of the sins of all your people will fall on your shoulders. Exactly the same letter का जो content है opening में, he's addressing to and from, and then चंद बातें कि ब्लेस्ड हैं वो लोग जो हिदायत पे हैं और इनवाइट कर रहे हैं कि दीन इस्लाम को कबूल करो ताकि आपको सिक्योरिटी के साथ रहने मिले. और जब आप दीन इस्लाम के फोल्ड में आ जाते हो तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको डबल रिवॉर्ड है. लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके लोगों का जो गुनाह है वो भी आपके सर पड़ेगा. एंड अगेन द सेम वर्सेस ऑफ कुरान, सूरा नंबर 3 वर्स 64. Dihya bin Khalifa al-Kalbi radhiyallahu anhu was ordered to hand the letter to the governor of Busra, who would in turn send it to Caesar. तो the Sahaba who was in charge was Dihya bin Khalifa al-Kalbi radhiyallahu anhu को कहा गया था कि ये ऑर्डर जो ये लेटर है ये हैंड ओवर करो किसको? गवर्नर ऑफ बुसरा को, जो कि सीजर तक पहुंचाएंगे. Incidentally, Abu Sufyan bin Harb, who at that time had not yet embraced Islam, was summoned to the court, and Heraclius asked him many questions about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the religion that he preached. The testimony which this open enemy of the Prophet gave regarding the personal excellence of the Prophet's character and the good that Islam was doing for humanity left Heraclius wonderstruck. अभी Heraclius किंग ने किसको बुलाया? अबू सुफियान बिन हर्ब को बुलाया, जिसने अभी तक दीन इस्लाम कबूल नहीं किया था. तो उनको बुला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और दीन इस्लाम के बारे में इंक्वायरी करने लगा. और ये जो खुला दुश्मन अबू सुफियान बिन हर्ब ने जो टेस्टिमनी दी, जो गवाही दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में और जो अच्छाई वो कर रहे थे इंसानियत के लिए, वो सुनकर हिराक्लियस एकदम हैरान कुन हो गया. Al-Bukhari, on the authority of Ibn Abbas radhiyallahu anhu, narrated that Heraclius sent for Abu Sufyan and his companions, who happened to be trading in Sham, which is Syria, Palestine, Lebanon, and Jordan, and had come to Ilia, which is Baitul Maqdas. This was during the truce that had been concluded between the polytheists of Quraysh and Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. बुखारी जो ऑन अथॉरिटी ऑफ इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु आगे नरेट करते हैं कि हिराक्लियस ने अबू सुफियान और उनके साहबास के लिए भेजा था मैसेज, जो कि उस वक्त शाम में ट्रेड कर रहे थे. अभी शाम के इलाके में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? सीरिया, पैलेस्टाइन, लेबनान और जॉर्डन. और वो इलिया में बैतुल मक़दस में भी आए थे. तो ये उस वक्त की बात थी जब जो ट्रूस था, जो मुशरिक ऑफ कुरैश और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में कंक्लूड हुआ था, उस टाइम की बात हो रही है. Heraclius, seated among his chiefs of staff, asked, "Who amongst you is the nearest relative to the man who claims to be a prophet?" Abu Sufyan relates the story. I replied, "I am the nearest relative to him from amongst the group." So they made me sit in front of him and made my companions sit behind me. Then he called upon his translator and said to him, "Tell them," that is Abu Sufyan's companions, "that I am going to ask him," that is Abu Sufyan, "about that man who claims to be a prophet. If he tells a lie, they should contradict him instantly.
By Allah, had I not been afraid that my companions would consider me a liar, I would have told lies. अभी ये हरकिलिस जो है वो हिराकिलिस जो है वो अपने चीफ के साथ स्टाफ के साथ बैठा हुआ है। फिर उसने ये जो ट्रेडर्स थे जो बिजनेस करने आए हुए थे शाम में, उनसे पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं उनका करीबी कोई रिश्तेदार कौन होगा ये पूरे तमाम ग्रुप में से। तो अबू सुफियान ने कहा कि मैं हूँ उनका, इन पूरी जमात में से मैं हूं उनके करीब सबसे। फिर उन्होंने अपने ट्रांसलेटर को बुलाया और उसको बुलाया और अपने पास बिठाया और उनके साथी जो थे, अबू सुफियान के जो साथी थे, उनको पीछे बिठाया। फिर अपने ट्रांसलेटर को बुला के कहा कि अबू सुफियान से चंद क्वेश्चन अबाउट द प्रॉफिट पूछेंगे और उनके साथियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगेगा कि अबू सुफियान झूठ बोल रहा है तो आपने मुझे इमीडिएटली बताना है, आगाह करना है। Abu Sufyan continued, Muhammad descends from a noble family. No one from his family happened to assume kingship. His followers are those considered weak, with numbers ever growing. He neither tells lies nor betrays others. We fight him and he fights us, but with alternate victory. अभी अबू सुफियान ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नोबल फैमिली, नोबल लाइनेज को बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली में से कोई किंग नहीं बना, लेकिन दे आर द नोबल लाइनेज। फिर उसके बाद इनके जो फॉलोवर्स हैं वो कमजोर माने जाते हैं, लेकिन इनका जो तादाद है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो होती जा रही है। ना तो वो झूठ बोलते हैं, ना तो धोखाधड़ी करते हैं। हम उनके साथ फाइट करते हैं, वो हमारे साथ फाइट करते हैं विद ऑल्टरनेट विक्ट्री, यानी कभी उनकी जीत होती, कभी हमारी जीत होती। वो लोगों को ताकीद करते हैं कि अल्लाह की इबादत करें, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करें। एंड जो हमारे बाप दादाओं का जो फोर फादर्स का जो रिलीजन था उसको छोड़ने की ताकीद करते हैं। वो हमको ऑर्डर करते हैं कि इबादत करो, सच्चाई पे रहो, बुराई से हटो, अपने घर वालों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करो। Heraclius, on hearing this testimony, turned to his translator and ordered him to communicate to us his impression, which revealed full confidence in the truthfulness of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's prophethood. फिर इतना सुनने के बाद हिराक्लिस ने अपने ट्रांसलेटर जो था उसको कहा, ऑर्डर दिया कि ये वो उनको एक्सप्रेस करे या कम्युनिकेट करे कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कि वो सही के नबी हैं। I fully realize that prophets come from the noble families. He does not have any previous example of prophethood. Since none of his ancestors were a king, we cannot then claim that he is a man trying to reclaim his father's kingdom. अभी इनकी फैमिली में, इनकी लाइनेज में कोई भी किंग नहीं था। अब ये जो पॉइंट है ये उनकी फायदे के लिए साबित हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्योंकि वो कुछ रिक्लेम नहीं करना चाह रहे, अपनी किंगशिप रिक्लेम करना नहीं चाह रहे। यानी ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन होल्डिंग अ चेयर या होल्डिंग अ पोजीशन या होल्डिंग अ किंगडम और पावर। तो देखा जाए तो उनका अपना जाती मफाद इसमें कोई नहीं है। वो सच्चे नबी है और नबियों की एक और एक जो सिफत होती है कि प्रॉफिट्स जो है वो नोबल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, नॉट नेसेसरीली किंगशिप बट नोबल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। तो हिराक्लिस जो है वो काफी ज्यादा इस चीज पर उसका यकीन और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सही अल्लाह के नबी हैं। So long as he does not tell lies regarding people, he is for the more reason immune to telling lies in regards to Allah. कहते हैं जब इनकी सिफत ही सच्ची है और हक पे है, बात जो है वो ट्रूथफुल वाली बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो जब सादिक है, अमीन है, तो वो दुनियावी मामलों में भी ऐसे हैं तो अल्लाह के मामले में भी वो झूठ फरेब नहीं करेंगे। Concerning his followers being those considered weak with numbers ever growing, this is the case with faith until it is complete. उस पे जो उसका कमेंट था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोवर्स हैं, जो सहाबाज हैं, वो कमजोर माने जाते हैं लेकिन उनकी तादाद एवर ग्रोइंग है। तो इसमें उन्होंने कहा ये सबके ईमान रिलेटेड है। जब तक कि ईमान कामिल नहीं होता लोग कमजोरी का मुजाहरा करते हैं। I have understood that no instance of apostasy has yet appeared among his followers, and this points to the bliss of faith that finds its place in the human heart. वो कहते हैं कि हमें ये भी नहीं हमने देखा कि इनके जो सहाबाज हैं जो दीन इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, भले कमजोर ईमान के ही हो, लेकिन वो दोबारा से उससे पलटते नहीं, मुर्तद नहीं होते। कहते ये एक साइन है कि उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो सहाबा हैं, उनको दीन इस्लाम में दाखिल होकर ईमान की जो कहते हैं ना सकीनत उतरने के बाद इनके दिलों में ये मुतमईन है, दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड कंटेंट, इसलिए ये दोबारा से दीन इस्लाम से नहीं फिरते।
Betrayal, as I see, is alien to him because real prophets hold themselves from betrayal. Betrayal यानी पीठ दिखा के भाग जाना, धोखा देना. कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि कोई नबी प्रॉफिट असली हो और उसके अंदर ये सिफत मौजूद हो. तो डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी ये धोखा देने वाली कोई सिफत मौजूद नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटी कि ये सही नबी है. You said he orders the worship of Allah with no associates, observance of prayer, honesty, abstinence, and prohibition of paganism. If this is true, he will soon rule the place beneath my feet. वो कहते हैं कि जो आपने कहा है कि वो किस चीज की ताकीद करते हैं लोगों को कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो और ईमानदारी से रहो और सारी जो ये बुत परस्ती है और जहालत वाली जो मन घड़त रस्में हैं उसको फॉलो मत करो. कहते हैं अगर वो इस सब चीजों की ताकीद करते हैं तो बहुत जल्द ये जितनी मेरे गवर्नमेंट या किंगडम है जो उस पे रूल करेंगे वो. दैट मीन्स व्हाट इज ट्राइंग टू से इज कि वेरी सून वो पर्शिया को भी ओवररूल कर जाएंगे, उसको भी इन्वेड कर जाएंगे, रोम को भी इन्वेड कर जाएंगे. यानी सारी बिग जितनी भी डायनेस्टीज है इंशाल्लाह भी इद्निल्लाह वेरी सून वो सबके ऊपर हावी हो जाएंगे. I have already known that a prophet would arise, but it has never occurred to me that he will be an Arab from among you. If I was sure I would be faithful to him, I might hope to meet him, and if I were with him, I would wash his feet. वो कहते हैं कि मुझे ये चीज का बिल्कुल नॉलेज है कि एक नबी जो है वो आने वाले हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो अरब में से होंगे, आप में से होंगे. कहते हैं अगर मैं श्योर हो जाऊं कि ये सही है तो मैं उनके लिए बहुत फेथफुल होऊंगा. मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी उनसे मुलाकात हो और फिर मैं उनसे मिलकर उनके पैरों को धोऊं. यानी आप देखें सुभान अल्लाह, किंग है मगर किंग जो है वो प्रोफेट्स के सामने अपनी वैल्यू क्या बता रहा है. यानी नबी और रसूल का जो दर्जा है सुभान अल्लाह वो कितना आला अल्लाह ताला ने बनाया है. Heraclius then requested that the prophet's letter be read, the observations of the emperor, and finally, the definite and clear-cut exposition of the Islamic message could only create a tense atmosphere amongst the clergy present at the court. They were ordered to leave. फिर हिराक्लियस ने क्या कहा, उसने रिक्वेस्ट किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर जो है वो पढ़ा जाए और ऑब्जर्वेशन जो एम्परर के हैं वो भी डेफिनेटली बता दे कि ये इस्लामिक मैसेज को लेकर उनकी क्या रिएक्शन है. लेकिन उनकी जो रिएक्शन है उससे उनके माहौल, उनके जो कोर्ट या सीनेट हम कहते हैं, जो उनकी काउंसिल है, उनके अंदर टेंस एटमॉस्फेयर हो सकता है. इसलिए उन्होंने जो क्लर्जी यानी जो उनके प्रीस्ट वगैरह जो थे, जो उनके रबाइज या प्रीस्ट हम कहते हैं, वो उनको उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो वहां से निकल जाएं. Abu Sufyan continued, while coming out, I said to my companions, the matter of Ibn Abi Qabsha, that is Muhammad, has become so prominent that even the king of Banu al-Asfar, the Romans, is afraid of him. यानी अबू सुफियान कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सुभान अल्लाह बिइज़्निल्लाह इतने पावरफुल हो गए, इतने प्रोमिनेंट हो गए, इतने फेमस हो गए कि बनु अल असफर यानी रोमन्स जो हैं वो भी उनसे डरते हैं. यानी देखा जाए तो रोमन्स एंड पर्शियंस वर वेरी जाइजेंटिक एम्पायर. इनकी बहुत पावर थी, इनकी बहुत स्ट्रेंथ थी, इनकी जो डोमिनियन थी वो बहुत दूर तक फैली हुई थी. तो उनके दिलों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर और खौफ पैदा अल्लाह ताला ने कर दिए थे और वो भी ये चीज को समझ रहे थे कि इस्लाम का गलबा होने वाला है और अल्लाह की मदद से वो जो है इन सारे गवर्नमेंट्स, इन सारे किंगडम्स के ऊपर इंशाल्लाह फतेह पाएंगे. So I continue to believe that Allah's messenger would be victorious until Allah made me embrace Islam. और इसलिए फिर वो वहीं तक यानी वो बिलीव करते रहे कि अल्लाह की जो मैसेंजर है वो लाजमी उनकी फतेह होने वाली है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया. The king did not embrace Islam for it was differently ordained. However, the Muslim envoy was returned to Medina with the felicitations of the emperor. अभी ये जो है अबू सुफियान तो डेफिनेटली ही बिकेम मुस्लिम, वी नो ऑल दैट. लेकिन जो किंग था उसने अभी तक एम्ब्रेस इस्लाम किया नहीं था. वो थोड़ा डिफरेंट उसका एक एंगल या परसेप्शन चल रहा था. लेकिन जो मुस्लिम एम्बेसडर या एनवॉय जो था वो रिटर्न हुआ मदीना में और उसका जो है बहुत फेलिसिटेशन किया गया, यानी उसका बहुत मानो सम्मान किया गया था. On his way back to Medina, Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu was intercepted by people from the tribe of Judham in Hisma who looted the presents sent to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अभी जब ये दिहा अल-कल्बी वापस आ रहे थे मदीना में तो एक ट्राइब है
एक कुंभा जिसका नाम जुधाम है हिस्मा में, उन्होंने उनको लूटा और जो प्रेजेंट्स जो किंग ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिए थे वो लूट लिया उन्होंने. Zayd bin Harisa radiallahu anhu, at the head of 500 men, was dispatched to that spot. He inflicted heavy losses on those people and captured 1,000 camels, 5,000 of their cattle, and 100 women and boys. One of the chiefs of Judham, who had embraced Islam, filed a complaint with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who gave a positive response to his protest and ordered that all the spoils and captives be returned. अभी ये जो ट्राइब वालों ने इनको लूटा तो जैद बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु 500 आदमियों के साथ वहां पर भेजे गए और फिर उन्होंने जब उनको अटैक किया तो उनको काफी अच्छा माल गनीमत मिला. 1000 कैमल, 5000 कैटल और 100 वुमेन और बॉयज मिले. लेकिन चीफ ऑफ जुदाम जो था उसने दीन इस्लाम कबूल कर लिया. फिर उसने कंप्लेन फाइल की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पॉजिटिव रिस्पांस करके अपने सहाबास को ऑर्डर किया कि उनका जो माल था वो उनको माल और जो लोग बंदी थे, प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे, उनको रिटर्न कर दिया जाए. क्योंकि उनकी ये एक वो होती थी ना कि अगर दीन इस्लाम कबूल कर लिया जाए तो फिर आप उनका बूटी जो है वो क्लेम नहीं कर सकते. Most of the authors on the battles of Prophet state that this event occurred before Al-Hudaybiyah. However, this is an obvious mistake since he Sallallahu Alaihi Wasallam sent the letter to Heraclius after Al-Hudaybiyah. This is why Ibn al-Qayyim said it was after Al-Hudaybiyah without doubt. अभी कुछ सारे जो ऑथर्स है वो कहते हैं कि ये वाला जो मामला था हेराक्लियस वाला, ये हुदैबिया की जो ट्रीटी है उसके पहले हुआ था. लेकिन जो सही राय बनती है, ज्यादा जो यूनानिमस बनती है, वो ये है कि ये जो है हेराक्लियस का जो लेटर भेजा गया था, ये पूरा किस्सा जो है वो अल हुदैबिया के बाद में हुआ था. एंड इसीलिए इब्न अल क़य्यूम भी कहते हैं very confidently that it was after Al-Hudaybiyah without a doubt. Fifth letter, पांचवा letter to Mundir bin Sawa, governor of Bahrain. The Prophet dispatched Al-Ala bin Al-Hadrami radiyallahu anhu to the governor of Bahrain with a letter inviting him to embrace Islam. अभी ये पांचवा लेटर जा रहा है मुंदिर बिन सावा जो गवर्नर ऑफ बहरीन है, और किसके हाथों गया? अल-आला बिन अल-हदरमी रदियल्लाहु अन्हु के हाथों. The letter is Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, I read your letter which you wrote to the people of Bahrain extending to them an invitation to Islam. Islam appealed to some of them and they entered the fold of Islam, while others did not find it appealing. In my country, there live Magians and Jews, and therefore you may inform me of the treatment to be extended to them. तो वो अल-मुंदिर बिन सावा रिप्लाई कर रहे हैं टू द लेटर, जो वो लेटर फॉर्मेट है वो सेम टू सेम है. उनका रिस्पांस आया अभी कि अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपका लेटर पढ़ा जो आपने हमें लिखा. बहरीन को इनवाइट कर रहे हैं आप दीन इस्लाम कबूल करने के लिए. कुछ लोग जो है वो इस्लाम से अग्री करते हैं और एंटर होना चाहते हैं इस्लाम के फोल्ड में, कुछ जो है वो नहीं अग्री करते हैं. फिर वो कहते हैं हमारी कंट्री में मैजियंस और यहूद भी रहते हैं, वो जो आग की पूजा करते हैं, वो कहते हैं वो भी रहते हैं. तो आप मुझे उनके बारे में, उनके साथ क्या मामला होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए. The Prophet wrote the following letter in reply to this. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई जा रहा है उनको. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, for Muhammad, messenger of Allah, to Mundir bin Sawa. अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम addressing to Mundir bin Sawa. Peace be upon you. I praise Allah who has no associates, and I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. I remind you of Allah the Mighty and the Glorious. Whoever accepts admonition does it for his own good. Whoever follows my envoys and acts in accordance with their guidance has in fact accepted my advice. My envoy have highly praised your behavior. You shall continue in your present office. Give the new Muslims a full chance to preach their religion. I accept your recommendation regarding the people of Bahrain, and I pardon the offenses of the offenders. Therefore, you may also forgive them. On the people of Bahrain, whoever wishes to continue in their Jewish or Magian faith should be made to pay jizya. Simple and sweet and to the point. उन्होंने कहा कि जैसे अल्लाह ताला की हम्द व सना कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जो भी अच्छाई एक्सेप्ट करेगा वो उसके लिए ही खैर होगा. जो हमारे एनवॉय का या जो हमारे मैसेंजर का मैसेज लेकर उसके हिसाब से हिदायत वाले काम करेगा, तो इसका मतलब है कि आपने हमारी जो राय या हमारी जो एडवाइस थी उसको एक्सेप्ट की. फिर वो कहते हैं कि हमारा जो एनवॉय है, हमारा जो बंदा है, एम्बेसडर है, जो मैसेंजर है, उन्होंने आपके हुस्न अखलाक के बारे में बहुत तारीफ की, तो इसलिए आप जो है अपने प्रेजेंट ऑफिस में कंटिन्यू करो. और जो न्यू मुस्लिम्स हैं ना, उनको आप चांस दो कि वो दीन इस्लाम को प्रीच करें, लोगों को टीच कर सकें. कहते हैं हम आपके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं रिगार्डिंग द पीपल ऑफ बहरीन, और हम उन सब लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने हमें ऑफेंस किया हो, और आप भी उन्हें माफ कर दीजिए.
और बाकी जो लोग हैं, जो यहूद और मैजियन हैं, उनको जो है जिजिया पे करना होगा सिक्योरिटी टैक्स की शक्ल में, एंड दे कैन कंटिन्यू लिविंग देयर। सो जो क्वेश्चंस पूछा गया, टू द पॉइंट, प्रिसाइजली आंसर, नो बीटिंग अराउंड द बुश। आपने देखा उनके लेटर और उनके कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके का एग्जैजरेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा तारीफ नहीं, कोई एक्स्ट्रा धमकी नहीं, कोई एक्स्ट्रा रूडनेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एकदम सिंपल, स्वीट, टू द पॉइंट, प्रिसाइज एंड शॉर्ट। ये है जबरदस्त कम्युनिकेशन का एक तरीका कार। लेटर टू हौदा बिन अल अली द गवर्नर ऑफ यमामा, ये 6th लेटर अभी हम देखेंगे। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, फ्रॉम मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह टू हौदा बिन अली, peace be upon him who follows true guidance, be informed that my religion shall prevail everywhere. You should accept Islam, and whatever is under your command shall remain yours. The envoy chosen was Sulayd bin Amr al-Amiri radiallahu anhu, who after communicating his message carried back the following reply to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहते हैं, हौदा बिन अली को लेटर भेजा जो गवर्नर ऑफ यमामा थे। यही कहा उनको, हमदो सना अल्लाह की सलामती की से स्टार्ट किया और कहा कि आप, मेरा जो दीन है वो हर जगह पे फैलने वाला है, आप इस्लाम को कबूल करें और जो कुछ भी आपके कमांड में है वो आपके पास ही रहेगा। और जो एनवॉय सिलेक्ट हुआ थे वो थे सुलैद बिन अमर अल अमीरी रदियल्लाहु अन्हु। उन्होंने मैसेज कम्युनिकेट किया हौदा बिन अली को और फिर उनका रिप्लाई लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। The faith to which you invite me is very good. I am a famous orator and poet. The Arabs highly respect me and I hold a position among them. If you include me in your government, I am prepared to follow you. The governor then bestowed a reward on Sulayth and presented him with clothes made of hajar fabric. Of course, he put all those presents before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. बड़ा positive और बड़ा short and sweet reply आया हौदा बिन अली का। उन्होंने कहा द फेथ, जो आप मुझे फेथ के बारे में, रिलीजन के बारे में इनवाइट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मैं बहुत फेमस पोएट और ओरेटर हूँ, यानी अच्छा स्पीकर हूँ। अरब जो है वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मेरी एक पोजीशन है उनके अंदर। मैं राजी हूँ आपकी गवर्नमेंट में इंक्लूड होने के लिए और मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपको फॉलो करने के लिए। और फिर उन्होंने जो सुलैत बिन अमर अल अमीरी रदियल्लाहु अन्हु थे, जो एनवॉय या मैसेंजर थे, उनको क्लोथ्स दिए हजर फैब्रिक के बने हुए। दिस वाज अ वेरी क्या कहते हैं, गुड क्वालिटी का एंड अ वेरी ब्रांडेड काइंड ऑफ अ फैब्रिक था। ऑफ कोर्स सुलैत बिन अमर अल अमीरी रदियल्लाहु अन्हु ने वो खुद नहीं ले लिया, उन्होंने वो प्रेजेंट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। द Prophet did not accept Hawda's demand. He usually turned down such authoritative tone and would say that the whole matter was in the hands of Allah, who gave his land to whoever he desired. Jibril later came with the revelation that Hawda had died. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the context of his comment on this news, said, "As for Yamama, from it will come a liar claiming prophethood after me, but he shall be killed." When someone asked who would kill him, he replied, "You and your companions," and it occurred as he said. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौदा की जो डिमांड है उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि उसकी जो एक टोन थी उसके अंदर थोड़ा सा अथॉरिटी थी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजिजी एंड क्रेडिट जो है वो सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ डायरेक्ट करना होता है। तो कोई भी इंसान या किसी का भी टोन ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा हो, मैं, आई, मी, माई सेल्फ वाला, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आता था वो टोन। तो उनको जो है हौदा का भी जो टोन था उसके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस और अथॉरिटेटिव टोन लगा। एनीवेज जिब्रील अमीन उनके पास आके उनको एक रेवलेशन दिए कि हौदा जो है वो फौत हो चुका है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और एक न्यूज़ दी कि यमामा में एक झूठ प्रॉफिटहुड, यानी एक कहते हैं ना कि बहुत सारे ऑलमोस्ट 32 जो है लोगों ने क्लेम किया प्रॉफिटहुड झूठ की बेसिस पे, तो यमामा से भी एक ऐसा लायर प्रॉफिट आएगा और उसका कत्ल हो जाएगा। तो साहबाज ने पूछा कौन उसको कत्ल करेगा, उन्होंने कहा यू एंड योर कंपेनियंस, आप और आपके साथी। और आगे चल के वो वैसा ही हुआ। लेटर टू अल हारिस बिन अबी शिमर अल गसानी द किंग ऑफ दमस्कस। अभी 7वां लेटर किसको जा रहा है? अल हारिस बिन अबी शिमर अल गसानी जो किंग ऑफ दमस्कस थे। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, from Muhammad, messenger of Allah, to Al Haris bin Abi Shimr. Peace be upon him who follows true guidance, believes in it, and trusts it. I invite you to believe in Allah Azza wa Jalla alone with no associate, and your kingdom will remain yours. Shuja bin Wahab radhiyallahu anhu had the honor of taking the letter to Haris, who, upon hearing the letter read in his audience, was madly infuriated and uttered, "Who dares to dispose me of my country? I will fight him."
the prophet yani, and arrogantly rejected the prophet's invitation to the fold of Islam. अब ये दमस्कस का जो किंग था वो आउटराइट उसने रिजेक्ट कर दिया। शुजा बिन वहाब रदियल्लाहु अन्हु थे एनवॉय, जिन्होंने लेटर लेकर गए थे अल हारिस बिन शमर के पास, और उसने गुस्सा हो गया। उसने कहा किसी को हक नहीं मेरी कंट्री में से यानी मुझे डिस्पोज ऑफ करे, मैं उनसे लड़ाई करूंगा, और रिजेक्ट कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनविटेशन को। Letter number 8, letter to the king of Oman, Jaifar, and his brother Abd bin al-Julandai. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, from Muhammad bin Abdullah to Jaifar and Abd, the sons of al-Julandai, peace be upon him who follows true guidance. I invite both of you to the call of Islam. Embrace Islam. Allah has sent me as a prophet to all the creation in order that I may instill fear of Allah Azza wa Jal in the hearts of his disobedient creatures, so that there may be left no excuse for those who deny Allah subhanahu wa ta'ala. If you do accept Islam, you will remain in command of your country. But if you refuse my call, you must remember that all your possessions are perishable. My cavalry would take possession of your land, and my prophethood will assume superiority over your kingship. अभी ये दो हैं जिनको जा रहा है ये लेटर, दो भाई, ओके, किंग ऑफ ओमान जायफर और उनके भाई अब्द बिन अल जुलंदाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज यूजुअल अल्लाह की हम्द सना से शुरू कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि सलामती उस पे जो कि हिदायत पे है, और दोनों को इनवाइट करें दीन इस्लाम को कबूल करने के लिए। फिर अपनी नबूवत का डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं सारे क्रिएशन के लिए नबी हूँ, और मैं अल्लाह का डर जो है वो लोगों के दिलों में डालने के लिए हूँ जो डिसोबीडियंट क्रीचर्स हैं। कहते हैं कि कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि आप अल्लाह को डिनाई करो, और अगर आप दोनों दीन इस्लाम को कबूल करते हो तो आप लोग अपनी कंट्री को अपने पास यानी अपने पावर्स आप रिटेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिफ्यूज किया तो आप ये जान लो कि हर चीज जो आपके पास है, पोजीशन जो है पेरिशेबल है, यानी वो निस्तो नाबूद हो जाएगी, सब चीज फना हो जाएगी, और मेरी जो कैवलरी है, जो आर्मी है, वो आपकी इन चीजों को और आपकी लैंड को आपसे छीन सकते हैं, लेकिन मेरी नबूवत जो है वो सुपीरियरिटी रहेगी, हमेशा आपकी जो किंगशिप है उसके ऊपर हमेशा हावी रहेगी। अमर बिन अलास रदियल्लाहु अन्हु was chosen to carry the letter, narrated the following story that happened before he was admitted into the audience of Jaifar. अभी वो अपने एनवॉय जो थे, जो सहाबा थे, अमर बिन अलास बता रहे हैं कि क्या हुआ था उनके उधर जाने के पहले। When I arrived in Oman, I contacted Abd, who was known to be more mild-tempered than his brother. The following dialogue took place between him and me. अभी एक जो भाई था ना अब्द, वो थोड़ा माइल्ड टेम्पर का था, गुस्से वाला नहीं था। तो उनके साथ उन दोनों के बीच में, अमर बिन आस और अब्द के बीच में क्या डायलॉग हुआ। अमर, I am the envoy of Allah's prophet coming to see both of you and your brother. Abd, you have to see my brother and read to him the letter you are carrying. He is my senior in both age and kingship. Incidentally, what is the purpose of your mission? Amar, we invite you to believe in Allah alone with no associate, to discard any other deities, and testify to the messengership of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब अमर जो है वो अपना बता रहे हैं कि मैं मैसेंजर हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आप दोनों भाइयों के लिए। अब कहते हैं कि आपको जो है मेरे भाई से ये लेटर के बारे में बताना पड़ेगा। वो एज में भी मुझसे बड़े हैं और किंगशिप के ओहदे में भी मुझसे बड़े हैं। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आपका मिशन क्या है, पर्पस क्या है आपके मिशन का। तो उन्होंने कहा कि हमारा मिशन है कि हम आपको अल्लाह पे यकीन रखने के लिए कह रहे हैं, शिर्क से मना कर रहे हैं, और कोई और डेटीज, कोई और माबूद की पूजा या वर्शिप नहीं होगी, और ये आपने टेस्टिफाई करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के रसूल और नबी हैं। तो अब्द ने कहा, ओ अमर, यू कम फ्रॉम अ नोबल फैमिली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट वाज योर फादर्स एटीट्यूड कंसर्निंग दिस फेथ, यू नो वी यूज्ड टू फॉलो हिज स्टेप्स। तो वो अमर से पूछ रहे कि तुम नोबल फैमिली से हो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वालिद का एटीट्यूड क्या था इस ईमान और इस मजहब को लेकर। कहते हैं आपको पता है हम उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो अमर कहते हैं कि डेथ जो है ओवरटुक हिम बिफोर बिलीविंग इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's मिशन। आई विश नाउ ही हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम and had faith in it before his death. I myself had adopted the same attitude until Allah Azza wa Jal guided me towards Islam. वो कहते हैं कि उनके जो वालिद हैं दीन इस्लाम कबूल करने से पहले उनकी डेथ हो गई थी, और वो ये हसरत रखते हैं कि काश मेरे बाबा जो है वो दीन इस्लाम को कबूल किए होते अपनी डेथ से पहले। कहते हैं मेरा भी एटीट्यूड यही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की तरफ से हिदायत आ गई। फिर अब्द उनसे पूछ रहे हैं, व्हेन डिड यू एम्ब्रेस इस्लाम। अमर कह रहे हैं, व्हेन आई वाज इन द कोर्ट ऑफ द नीजस हु आल्सो एंटर्ड इस्लाम। तो कहते हैं जब वो जो इब्न सीनिया के किंग के पास थे कोर्ट में, तभी उन्होंने एक्सेप्ट किया था दीन इस्लाम।
फिर आप कहते हैं लोगों का रिएक्शन कैसा, फिर अमर कहते हैं कि दे अप्रूव्ड ऑफ हिम एंड फॉलोड हिज स्टेप्स, यानी उनके लोगों ने भी अप्रूव किया और उनके फॉलो किया स्टेप्स को। फिर अब कहते हैं द बिशप्स एंड मॉन्क्स एज वेल, तो वो कहते हैं हाँ बिशप्स एंड मॉन्क्स एज वेल, यानी उनके जो रिलीजियस क्लर्जी या जो लीडर्स थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। फिर अब कहते हैं बीवेयर ऑफ लाइंग अमर, फॉर दिस सून डिस्ग्रेसेस अ पर्सन देन एनी अदर थिंग। उनको कहते हैं कि होशियार हो जाओ कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि झूठा जो आदमी होता है कहीं ना कहीं जाके आगे फिर रुसवा ही होता है। अमर कहते हैं आई नेवर टेल लाइज, एडिशनली आवर रिलीजन डज नॉट परमिट इट। वो कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता और जो हमारा दीन मजहब है वो हमें झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। सुभान अल्लाह, अ थिंग अ पॉइंट टू पॉन्डर। क्या हम भी हमारे जो कलिमात है वो हक हैं, सच हैं? अगर थोड़ा सा भी उसमें हेर फेर है, झूठ है, इस्तगफार करिए और अपने आप को झूठ से बचाइए, बिकॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हदीस इज देयर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मफहूम मैं आपको बताती हूँ कि जो झूठा है वो हमें से नहीं है, यानी ये एक ऐसा वाइस या ये एक ऐसा ऐब या ये एक ऐसा गुनाह है कि वो सीधा सीधा जो है दूसरे गुनाहों को जो है ना उसको लिंक करते हुए आपको दूसरे गुनाहों में मुब्तला करता है। कहते हैं ना एक झूठ से बचने के लिए आपको 1000 झूठ बोलना पड़ता है। तो इट इज बेटर कि आप जो है झूठ से इज्तनाब करें, झूठ से बचें और अपने बच्चे और डिपेंडेंट्स को भी इस चीज की रिमाइंडर अक्सर देते रहें। इट इज ओके टू बी ऑनेस्ट, इट इज ओके टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज ओके टू बी अपराइट, लेकिन झूठ से बचें। और कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप ऐसे एक डेड एंड पे हो कि आप सिर्फ झूठ ही बोल के आप फारिग हो सकते हो, सो इट इज बेटर टू बी साइलेंट। अगर आप खामोश हो जाएं तो बेटर है। और अगर देर आर सर्टन ओकेजन्स एंड टाइम्स जहां पर झूठ की परमिसिबिलिटी है, इंशाल्लाह ताला विल ट्राई टू डिस्कस दैट, और उसकी जो रिलेटेड कंडीशन है मैं इंशाल्लाह नोट करती हूँ कि आपके लिए डालूं इंफॉर्मेशन। सो झूठ जो है उससे हमें बचना होगा। और अब तक के जो लाइल्मी में या हमने बोलते ना बीइंग केयरलेस होके माइंडलेस होके किया होगा, उसके लिए हम खूब इस्तगफार करेंगे। फिर अब कहते हैं हैज Heraclius been informed that the Negus has accepted Islam? Amar, yes of course. Then Abd, how did you happen to know that? अमर कहते हैं अभी ये जो है वो उससे इंक्वायरी कर रहा है कि हिराक्लियस ने भी हिराक्लियस को पता है कि नेजस ने भी दीन इस्लाम कबूल किया। वो कहते हैं हाँ उन्हें पता है। वो कहते हैं आपको कैसे पता, हाउ डिड यू हैपन टू नो दैट? तो वो कहते हैं द नीजस यूज्ड टू पे लैंड टैक्स टू हिराक्लियस, बट व्हेन द फॉर्मर एम्ब्रेस्ड इस्लाम ही swore he would discontinue that tax. When this news reached Heraclius, his brother Al-Yanak advised him to take actions against Negus, but he refused and added that he himself would do the same if he were not greedy of his kingship. तो नीजस जो है वो लैंड टैक्स जो है हिराक्लियस को पे करते थे दीन इस्लाम कबूल करने से पहले, लेकिन दीन इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने टैक्स पे करना डिसकंटिन्यू किया। जब ये न्यूज हिराक्लियस के पास गई तो उनके भाई अलियनाक उनको कहते हैं कि एक्शन लो नीजस के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा ये, क्योंकि शायद मैं भी इसी तरीके से रिएक्ट करता अगर मैं किंगशिप के लिए, यानी ये जो ताज और तख्त के मुझे लालच नहीं होती तो मैं भी शायद वैसे ही करता। फिर अब कहते हैं व्हाट डज योर प्रॉफिट ऑर्डर यू टू डू? आपके नबी जो हैं वो क्या आपको हुक्म देते हैं, क्या अमर देते हैं? तो अमर कहते हैं ही ऑर्डर्स अस टू ओबे अल्लाह, कि हम अल्लाह को ओबे करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें, द अलमाइटी एंड द ऑल ग्लोरियस, टू बी पायस एंड मेंटेन गुड टाइज विद फैमिली। ही फोरबिड्स एग्रेशन, अडल्ट्री, डिसोबीडियंस, वाइन, आइडोलिट्री एंड डिविजन टू द क्रॉस। वो कहते हैं वो हमें ताकीद करते हैं कि आप नेक रहो, परहेजगार रहो, अपने घर वालों के साथ फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, किसी पे जुल्म मत करो, जिनाकारी मत करो, बेहुरमती मत करो, वाइन से दूर रहो और आइडल वर्शिपिंग से दूर रहो, बुत परस्ती से दूर रहो, और क्रॉस के ऊपर आपकी डिवोशन नहीं होनी चाहिए, यानी कोई माबूद के लिए जगह नहीं है। फिर अब कहते हैं फेयर वर्ड्स एंड फेयर बिलीव्स आर दोज यू आर कॉलिंग फॉर। आई विश माई ब्रदर वुड फॉलो मी टू बिलीव इन मोहम्मद एंड प्रोफेस हिज रिलीजन, बट माई ब्रदर इज टू ग्रीडी ऑफ हिज किंगशिप टू बिकम अ सबॉर्डिनेट। वो कहता है कि बिल्कुल सही, फेयर वर्ड्स, आपने हक की बात की है, हक वाली ईमान की बात की है आपने, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा भाई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलीव करे और दीन इस्लाम को कबूल करे। कहते हैं लेकिन मेरा भाई जो है वो बहुत लालची है अपने तख्त ताज और किंगशिप को लेकर। अमर कहते हैं शुड योर ब्रदर सरेंडर हिमसेल्फ टू इस्लाम द प्रॉफिट वुड गिव हिम अथॉरिटी ओवर हिज पीपल एंड टेक आर्म्स टैक्स फ्रॉम द वेल्दी टू बी गिवन टू द नीडी। अमर उनको सोल्यूशन दे रहे हैं
कि अगर आपका भाई सरेंडर कर लेता है तो उसकी अथॉरिटी कहीं नहीं जाएगी, उसकी अथॉरिटी उसी के ही पास रहेगी, और वो लोग जो दीन इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनसे जिजिया तौर पे लिया जाएगा और वो गरीबों में बांटा जाएगा। अब सेड दैट इज फेयर बिहेवियर, बट व्हाट इज दिस आर्म्स टैक्स यू हैव मेंशन। वो कहते हैं ठीक है ये बिल्कुल सही बिहेवियर है, फेयर है, इसमें अदल है, लेकिन ये जो टैक्स है आर्म्स टैक्स, इसके बारे में क्या है। तो अमर कहते हैं इट इज अ डिवाइन कमांडमेंट दैट आर्म्स टैक्स बी टेकन फ्रॉम द वेल टू डू पीपल who have surplus wealth and be distributed to the poor. यानी समथिंग लाइक ज़कात, खैरात, सदका, ये जो है वो अल्लाह की तरफ से कमांड है कि अमीरों से पैसा लिया जाए और गरीबों में तकसीम किया जाए। अब आई डाउट इफ दिस कैन वर्क अमंग अवर पीपल। वो कहते हैं मुझे शक है कि हमारे लोगों में ये कानून या ये फैसला शायद चलेगा, नहीं चलेगा पता नहीं। Amar stayed for some days to be admitted into Jaifar's court until he was finally granted this permission. He said, he asked me to hand him the letter to read it. After that, he asked me how the Quraysh had reacted, and I answered they had followed him, some out of their own free will and others overpowered by military fighting. Now, people have chosen Islam in preference to other creeds and have realized through their mental insight that they had been staying in darkness. None except you is now out of the domain of Islam. So I advise you to embrace Islam so that you can provide security to yourself and your country. Here he asked me to call on him the following day. अभी दूसरे जो है जयफर के कोर्ट में उनको एंट्री मिल गई, कुछ दिन वो रहे उनके पास, उनके कंट्री या उनके स्टेट में, तो उनको दूसरे भाई जो था जयफर, जो बड़ा वाला था, जो मेन इंचार्ज था, उनकी कोर्ट में दाखिला मिल गया। फिर उन्होंने उनको कहा लेटर दो और रीड करने को कहा। फिर उसके बाद उन्होंने उनसे इंक्वायरी की कि क्या कुरैश कैसे रिएक्ट किया और क्या जवाब दिए। तो उन्होंने कहा उन्होंने उनको फॉलो किया, कुछ ने अपनी मर्जी से किया, कुछ जो है मिलिट्री पावर ओवर पावर करके फाइटिंग करके उन्होंने एक्सेप्ट किया, और लोगों ने दीन इस्लाम को तरजीह दे रहे हैं दूसरे मजहबों के ऊपर। और उन्होंने देखा कि इसमें क्या खासियत है और किस तरीके से ये दीन इस्लाम अंधेरियों से लेकर नूर की तरफ लेकर आता है। कहते हैं सिवाय आपके यहाँ पर जितने भी मेन सारे डोमेन है उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो कहते हैं इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ, आपको राय देता हूँ, मशवरा देता हूँ कि आप दीन इस्लाम कबूल करें ताकि आपको पूरी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिल सके, आपको और आपकी कंट्री को। फिर उन्होंने कहा कि कॉल ऑन हिम द फॉलोइंग डे, अगले दिन नेक्स्ट डे में उनको कांटेक्ट किया जाए। द फॉलोइंग डे ही शोड सम अनविलिंगनेस इन रिसीविंग मी, बट हिज ब्रदर अब interceded and I was given the chance to see him again. But this time he addressed me in a threatening, arrogant tone. However, after a private talk with his brother and reconsidering the whole situation, both brothers embraced Islam and proved to be true to Islam, which had begun to make its way into this new era. ये ऐसा हुआ कि नेक्स्ट दिन उन्होंने कहा कि आप दोबारा से आके मुझे मिलो। तो नेक्स्ट दिन वो उनको मिलने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनके जो छोटे भाई थे अब उन्होंने इंटरसीड किया और फिर इनकी मुलाकात हुई। लेकिन वो जो है जयफर वो थोड़ा सा एरोगेंट और थ्रेटनिंग टोन में बात कर रहे थे। फिर उनके जो भाई थे अब उन्होंने दोबारा से उनसे प्राइवेट टॉक की और उनको पूरी सिचुएशन का जायजा दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली दोनों भाइयों ने दीन इस्लाम कबूल किया और आखिर तक वो उस पर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें लग गया था कि यही रिलीजन है जिसका जो है अभी आगे पूरे एरिया में बोलबाला होना है। Through these letters, the Prophet managed to communicate his message to most of the kings at that time. Some believed, while others remained obstinate and persisted in their disbelief. However, the idea of embracing Islam and the advent of a new prophet preoccupied all of them. यानी ये जो थे ये मुख्तलिफ लेटर्स थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम्युनिकेट किए आसपास की नेबरिंग किंगडम्स के किंग्स को। कुछ ने चंद ने जो यकीन किया, दूसरे जो थे वो खामोश रहे और अपने कुफर में रहे। लेकिन हाउएवर ये दीन इस्लाम को कबूल करने का आइडिया था उनको, यानी समझ आ गई थी, और ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके जहनों में तारी रहे कि उन्हें पता है कि ये एडवेंट है, ये अभी नबी जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे। दिस इज द न्यू बिगिनिंग। यानी पोस्ट हुदैबिया हॉस्टिलिटीज, द इन्वेजन ऑफ गाबा और दी कराद। अब ये हुदैबिया के बाद जो अटैक्स या हॉस्टिलिटीज या जो नेगेटिविटी हुई उसके बारे में है, और ये कौन सी इन्वेजन ऑफ गाबा और दी कराद के बारे में इंफॉर्मेशन है। It was in fact not a battle but a clash carried out against a platoon of Bani Fazara
It occurred at Ziqarad, a water reservoir situated at a day's journey from Medina. ये एक्चुअल जंग नहीं थी मगर एक क्लैश था. एक छोटी प्लाटून जो है बनी फराजा की, ये कौन सी जगह में हुआ? जी कराद में. वाटर रिजर्वर था जहां पर पानी का एक वो था, इंतजाम था. और ये जो जगह है ये 1 घंटे की जर्नी पर है मदीना से. Al-Bukhari named a chapter about it in which he indicated that it occurred 3 days before the Battle of Khaybar. खैबर के बैटल के 3 दिन पहले का किस्सा है ये. अल बुखारी ने में रिकॉर्ड हुआ है. Muslim reported a chain of narration from Salama bin al-Aqwa saying the same. Okay. मुस्लिम ने रिपोर्ट किया चेन ऑफ नरेशन से फ्रॉम सलमा बिन अल-अक्वा के ये जो majority of the writers on the battles of the prophet listed before al-Hudaybiyah, but the most correct किसकी है? अल-बुखारी और मुस्लिम की. बिफोर और आफ्टर हुआ अल्लाह आलम, ये डिफरेंट इनके जो नरेटर्स होते हैं या जो स्कॉलर्स और रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी अपनी उनकी एक क्या कहते हैं फाइंडिंग्स होती है और वो डिसाइड कर रहे होते हैं. कुछ कहते हैं बिफोर, कुछ कहते हैं पोस्ट, अल्लाह आलम. लेकिन सबसे एक्यूरेट जो मानी जाती है वो अल बुखारी और मुस्लिम की. It has been narrated on the authority of Salma bin al-Aqwa radiallahu anhu, the hero of this battle. Allah's messenger sent one of his slaves, Rabah, with his camels to a nearby pasture. I, taking Talha's horse, went there for the same purpose. When the day dawned, Abdurrahman al-Fazari made a raid, drove away all the camels, and killed the man who looked after them. I told Rabah to ride the horse, take it to Talha, and inform Allah's messenger, that the mushrik had made away with his camels. Sorry. On the authority of Salma bin al-Aqwa radiallahu anhu, the hero of this battle, Allah's messenger sent one of his slaves, Rabah. Okay. अभी सलमा बिन अल-अक़वा जो नरेट करते हैं कि अल्लाह मैसेंजर ने अपने एक स्लेव रबा को कैमल्स के साथ नियर बाय के हरियाली में पैस्चर में भेजा और सलमा बिन अल-अक़वा ने तलहा का हॉर्स लेके वो वहां पर गए. जब जैसे ही दिन जो है डॉन हुआ, अब्दुर्रहमान अल-फजारी ने रेड कर दी, सारे कैमल्स को लेके गए और जो उसकी देखरेख कर रहा था उसका कत्ल कर दिया. तो रबा को उन्होंने कहा कि हॉर्स लेकर जाओ और तलहा के पास जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताओ कि मुशरिक जो है यहाँ पर आ गए हैं और कैमल्स को लेकर चले गए हैं. फिर वो एक हिल पे खड़े हो गए, मदीने की तरफ अपना फेस किया और 3 बार उन्होंने चिल्लाया, कम टू अवर हेल्प, हमारी मदद के लिए आओ. After that, I set out in pursuit of the raiders, shooting at them with arrows and chanting self-eulogistic verse. I am the son of Al-Aqwa. Today is the day of defeat for the mean. By Allah, I continued shooting at them and killing their animals. अभी जैसे आपने देखा कि एक जो ग्रुप था ये आए, इन्होंने ये कैमल वाला जो हर्ड्समैन था उसका कत्ल किया, कैमल्स को लेकर चले गए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है इंफॉर्मेशन पहुंची और फिर इन्होंने क्या किया, सलमा बिन अल-अक़वा जो है वो हिल पे गए, मदीने की तरफ फेस किया और चिल्लाने लगे, हमारी मदद के लिए आओ. और फिर वो है रेडर्स के पीछे भागे, उनके पीछे एरोज फेंकने शुरू किए और उसके बाद खुद से उन्होंने लाउडली चैंट करना शुरू किया कि मैं हूं अल-अक़वा का बेटा. टुडे इज द डे ऑफ डिफीट फॉर द मीन, यानी जो मीन है, जो सेल्फिश लोग हैं, उनकी हार होने वाली है. By Allah, I continued shooting at them and killing their animals. यानी वो कंटिन्यूसली जो है वो शूट करते जा रहे थे और दुश्मनों के जो एनिमल्स हैं उनको किल करते जा रहे थे. Whenever a horseman turned upon me, I would come to a tree, sit at its base, shoot at him, and killing his horse. At last, they entered a narrow mountain gap. I ascended that mountain and held them at bay by throwing stones at them. I continued to chase them in this way until I got all the camels free, none remaining with them.
They fled in all directions, and I followed, shooting at them continually until they dropped more than 30 mantles and their lances, lightening their burdens. On everything they dropped, I put a mark with some stones so that Allah's messenger and his companions might recognize them as booty left by the enemy. They went on until they came to a narrow valley. They sat down to eat something, and I sat on the top of the tapering rock. Four of them ascended the mountain, coming towards me. When they were near enough to hear me, I shouted, "Do you recognize me?" They said, "No. Who are you?" I said, "I am Salama, son of Al-Aqwa. I can get any one of you, but none of you can get me." So they returned. आप देखें सुबहान अल्लाह, एक आदमी की बहादुरी और एक आदमी की, जिसे हम कहते हैं ना कि क्राइसिस मैनेजमेंट, या उसका जो अल्हम्दुलिल्लाह स्किल और उसका जो दिमाग है, किस तरीके से उसने अपनी बहादुरी जान माल लगा के अकेला किस तरीके से इन लोगों को ड्राइव आउट करके माल गनीमत भी हासिल किया, इन लोगों पे हावी भी हुए और सारे कैमल्स को भी उन्होंने छुड़वा दिया। वो कंटिन्यूसली, जैसे हमने देखा कि वो कंटिन्यूसली उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, उनके एनिमल्स को अटैक कर रहे थे, और अपना जो उनका जो प्रोसीड करने का जो तरीका था वो कंटिन्यूसली वो करते जा रहे थे, और उन्होंने तकरीबन कंप्लीटली सारे कैमल्स को भी फ्री कर दिया। और ये लोग जो है अपना बोझ हल्का करने के लिए अपनी चीजों को उतारते जा रहे थे, तो वो उन चीजों के ऊपर भी मार्क लगाते जा रहे थे ताकि कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीजों को देखें, वो माल को देखें, तो उन्हें समझ आ जाए कि ये बूटी का माल है, यानी ये माल गनीमत है जो मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम के कंट्रोल में जाने वाला है। और वो कंटिन्यूसली ये करते जा रहे थे। अब ऐसा हुआ कि कुछ 4 लोग जो थे वो उनकी तरफ आ रहे थे, असेंड कर रहे थे माउंटेन पे। तो उन्होंने फिर से कहा कि आप मुझे जानते हो, डू यू रिकॉग्नाइज मी? उन्होंने कहा नहीं। तो कहते मैं हूं सलमा सन ऑफ अल-अक़वा, अल-अक़वा का बेटा। कहता है मैं आप लोगों को वो कर सकता हूँ अटैक, लेकिन आप मुझ पे नहीं कर सकते। और फिर वो लोग लौट गए। यानी आप देखें उनके लिए माशाल्लाह उनकी जो अथॉरिटी थी, जिस तरीके से वो अपने वर्ड से लोगों के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद इस तरीके से आ रही है कि उनके दिल में खौफ तारी हो रहा है। एक अकेला आदमी, indeed he was the hero of this small battle, or you can say एक small जो clash हुआ था, alhamdulillah. I did not move from my place until I saw the horsemen of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, who came riding through the trees. The foremost among them was Akhram. Behind him was Abu Qatada al-Ansari, followed by Al-Miqdad bin al-Aswad radiyallahu anhuma. Akhram and Abdurrahman al-Fazari met in combat. अभी वो अपनी वही तैनात थे वो जगह पे, वो छोड़े ने उन्होंने वहीं पर ही अपनी एक ड्यूटी जैसे लगा दी थी, जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक हॉर्समैन, एक मैसेंजर नहीं आया। अब काफी सारे सहाबाज के मेंशन है यहाँ पर जो पहुंचे वहां पर। वन ऑफ देम वाज अखराम, वन वाज अबू कतादा अल-अंसारी, दूसरे थे अल-मिक़दाद बिन अल-अस्वद। अब अकरम और अब्दुर्रहमान अल-फजारी के बीच में डुअल कॉम्बैट होने लगा, यानी उनकी अटैक और डिफेंस शुरू हुआ। अकरम killed Abdurrahman's horse, but the latter managed to strike him with his lance and killed him. Abdurrahman turned around riding Akram's horse. Abu Qatada, seeing this, engaged in a fierce combat with Abdurrahman, struck him with a fatal blow with his lance. The polytheists consequently fled, and I went in their pursuit. Before sunset, they reached a valley with a spring of water called Dhi Qarad. They rested there to have a drink, but I, having been in their pursuit, turned them out of the valley before they could drink a drop of water. अभी इन लोगों की आपस में जो जंग होने लगी, डुअल कॉम्बैट होने लगा, उसमें एक सहाबा का कत्ल हो गया और जो दुश्मन मुशरिक था वो जिंदा बच गया। फिर दूसरे सहाबा के साथ उसकी भीड़ हुई और दूसरे सहाबा ने उनको कत्ल कर दिया। अब मुशरिक जो है वो भाग रहे थे, लेकिन बिफोर सनसेट वो एक वैली में पहुंचे, एक पानी की जो जगह थी जिसका नाम ज़ी क़रात था। वहां पे जाके वो रेस्ट करके पानी लेना चाह रहे थे, लेकिन जो सहाबा थे हमारे अल-अक़वा, सलमा बिन अल-अक़वा, वो जो हैं उनको दौड़ाते गए और उनको पानी का एक बूंद भी, एक कतरा भी उनको पीने के लिए नहीं छोड़ा। Later on, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with his companions, overtook me. I said, "O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, let me select from our people 100 men, and I will follow the plunderers and finish them." In reply, the Prophet said, "Ibn al-Aqwa, you have taken enough, and so now you have to show nobility." They have reached the locality of Ghatafan, where they are having a feast. He added, "Our best horseman today is Abu Qatada, and our best footman today is Salama."
He allotted me 2 shares of the booty, the share meant for the horsemen and the other meant for the footmen. Intending to return to Medina as an honor, he made me mount behind him on his she-camel called Al-Adba. Ibn Makhtum was given the administration of Medina and Miqdad bin Amr the standard of the Prophet during this invasion. अभी ऐसा हुआ कि ये तो मुशरिकों को बाहर उन्होंने भगा दिया, एक कतरा पानी भी नहीं उनको नसीब हुआ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस जो थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने 100 लोगों को। ये अकवा जो है, सलमा बिन अकवा कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप, मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ 100 आदमियों को और इन लोगों को वापस से इनको पीछे इनके भाग के इनको खत्म कर देता हूँ, कत्ल कर देता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया और अभी जो है थोड़ी सी नोबिलिटी दिखाने का टाइम है। ये अपने गताफान के लोकेलिटी में पहुंच गए हैं और ये फीस्ट अभी दे आर एंजॉयिंग देयर फीस्ट। कहते हैं हमारे आज के ये जो क्लैश है इसका जो बेस्ट हॉर्समैन है वो कौन है? वो अबू कतादा है। और जो फुटमैन, जो बेस्ट फुटमैन, जो फुट पे यानी बिना हॉर्स के जो चल के भाग के जिन्होंने फतेह हासिल की वो सलमा अल अक़वा है। फिर उन्होंने उनको 2 हिस्से बूटी दिए और कहा एक जो हॉर्समैन के लिए और एक जो है फुटमैन के लिए। और फिर उनको कहा जब मदीने में लौट रहे थे तो एज एन ऑनर उन्होंने उनको अपने साथ बिठाया अपनी शी कैमल पे जिसका नाम था अल अदबा। और इब्न मखतूम जो थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज बनाया था मदीना का और मिक्ताद बिन अमर जो थे उनके हाथ में फ्लैगशिप थी ये इन्वेजन की। सो दैट वाज अबाउट द इन्वेजन ऑफ गाबा और जी करार। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि कौन हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह सलमा बिन अल अक़वा। सो दैट वाज द सेशन फॉर टुडे। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है तो प्लीज आप ओपन योर माइक्स। If there are no questions, inshallah we will meet tomorrow bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।